ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੋੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਐਤਰਾਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਖਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲੇ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਾਥ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਦਖਲ। ਸ਼ੁਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭੋਗ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ। ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 195 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 4 ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਾਂਸਰੀ ਸਵਰਾਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਕੋਟਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਲਿਆਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ बीजेपी के कैंडिडेट उतारे गए ने। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी तो चोण मैदान उतरनगे। इस दे विचाले जैसी गल करिए रवि किशन दी गोरखपुर यूपी तो कैंडिडेट उतारे गए ने बीजेपी के वलों। साक्षी महाराज उन्नाव यूपी तो कैंडिडेट उतारे गए ने। जैसी गल करिए दिनेश नाल निरुआ दी ओ भी आजमगढ़ तो चोण मैदान बीजेपी के वलों उतारे गए ने। यूपी तो बीजेपी के वड्डे
उम्मीदवार की लिस्ट जो है सांझी करे। हेमा मालिनी जो नाम शामिल है, साध्वी निरंजन ज्योति, रवि किशन, साक्षी महाराज ते दिनेश लाल नेहरू आ तमाम जो कैंडिडेट्स ने वड्डे चेहरे ने बीजेपी दे वल्लों यूपी चोण मैदान च उतारे गए। जिसकी गल करिए शिवराज सिंह चौहान की, विदिशा तो चोण लड़नगे ऐतकी। ज्योतिराज सिंधिया जो है वो गुना तो चोण मैदान च उतरनगे। इस विचाले वीडी शर्मा खजुहारो तो चोण मैदान च उतरनगे। फग्गन सिंह कुलसते मंडला तो चोण मैदान च उतरनगे। एमपी तो यानी कि मध्य प्रदेश तो बीजेपी दे वड्डे उम्मीदवार की लिस्ट तुहानूं वखाने किहड़े वड्डे चेहरे ने जो मध्य प्रदेश तो बीजेपी दे वल्लों कैंडिडेट जो ने उम्मीदवार ऐलाने गए ने। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान विदिशा तो चोण मैदान च उतरनगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना तो, वीडी शर्मा खजुराहो तो, इस विचाले फग्गन सिंह उतरनगे। इस विचाले हुण असीं गल करांगे दिल्ली दी। दिल्ली तो बीजेपी दे वड्डे उम्मीदवार जो चोण मैदान च उतारे ने, उन्हां च ने प्रवीण खंडेलवाल चोण मैदान च उतरनगे। चांदनी चौक दिल्ली तो मनोज तिवाड़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली तो चोण मैदान च उतरनगे। इस विचाले रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली तो चोण मैदान च उतरनगे। कमलजीत सिंह जो ने पश्चिमी दिल्ली तो चोण मैदान च उतरनगे ते बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी ने नवी दिल्ली तो कैंडिडेट जो ने उतारे गए हैं। इस विचाले जैसी गल करिए तो एमपी तो जो मौजूदा एमपीस ने दिल्ली तो 4 उन्होंने टिकट बीजेपी के वल्लों भी कट्टी गई है। तो दिल्ली तो किहड़े जो कैंडिडेट्स ने वो तमाम सीटां ते उतरनगे उन्होंने लिस्ट तुहाडे नाल ग्राफिक्स के जरिए सांझी कर रहे हैं। हुण अगे वधांगे तो गल करांगे दिल्ली तो बीजेपी के वड्डे उम्मीदवार ने प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक, मनोज तिवाड़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली, इस दे विचाले सुषमा स्वराज की बेटी आ तमाम जो कैंडिडेट ने वो दिल्ली तो चोण मैदान च उतारे गए ने बीजेपी के वल्लों। हुण असीं अगे वधांगे तो गल करांगे राजस्थान की। राजस्थान तो भी बीजेपी के वल्लों वड्डे चेहरे चोण मैदान च ऐतकी जो ने अपनी किस्मत आजमानगे। उन्हां च ओम बिरला कोटा राजस्थान तो चोण मैदान च उतारे गए ने। गजेंद्र शेखावत केंद्र जल शक्ति मंत्री ने जोधपुर राजस्थान तो चोण मैदान च उतारे गए ने। इस विचाले भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान तो चोण मैदान च उतारे गए ने। कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान तो चोण मैदान च उतारे गए ने। इस विचाले देवेंद्र झाझरिया चूरू राजस्थान तो चोण मैदान च उतारे गए। तमाम लिस्ट तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं राजस्थान तो किहड़े वड्डे चेहरे ने जो बीजेपी के वल्लों चोण मैदान च उतारे गए ने। ओम बिरला मौजूदा स्पीकर ने, गजेंद्र शेखावत मौजूदा जल शक्ति मंत्री ने, भूपेंद्र यादव राजस्थान तो चोण मैदान च उतरनगे। इस दे विचाले कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान तो चोण मैदान च उतरनगे। देवेंद्र झाड़िया चूरू राजस्थान तो चोण मैदान च उतरनगे। अगे गल करांगे बीजेपी की लिस्ट च किहड़े भोजपुरी सितारे बीजेपी के वल्लों शामिल किए गए ने। ग्राफिक्स जरिए तुहानूं दस रहे हैं। मनोज तिवाड़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली तो चोण मैदान च बीजेपी के वल्लों उतारे गए ने भोजपुरी सितारे ने। रवि किशन गोरखपुर यूपी तो अपनी किस्मत आजमानगे। इस विचाले दिनेश लाल नेहरू आजमगढ़ यूपी तो अपनी किस्मत आजमानगे। बीजेपी के वल्लों कैंडिडेट उतारे गए ने। जैसी गल करिए तो पवन सिंह दी आसनमोल वेस्ट बंगाल तो चोण मैदान च बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे। तो बीजेपी की लिस्ट तुहानूं विखा रहे हैं कि भोजपुरी सितारे किहड़े उन्हां दे वल्लों चोण मैदान च कित्थों उतारे गए। असीं गल करांगे वड्डे चेहरिਆਂ दी जिन्हां दी टिकट इस वार कट्टी गई है। उन्हां दे विच डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम शामिल है। चांदनी चौक तो उन्हां दी टिकट कट्टी गई है। मौजूदा एमपी ने मीनाक्षी लेखी नवी दिल्ली तो उन्हां दी टिकट कट्टी गई है। इस विचाले प्रवेश वर्मा ने जिन्हां दी टिकट कट्टी गई है वेस्ट दिल्ली तो। रमेश बिधूड़ी ने जिन्हां दी साउथ दिल्ली तो टिकट कट्टी गई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिन्हां दी भोपाल तो टिकट कट्टी गई है। तो वड्डे चेहरे तुहानूं विखा रहे जिन्हां दी जो टिकट है ऐतकी कट्टी गई है। नवे चेहरे बीजेपी के वल्लों चोण मैदान च उतारे गए हैं। तमाम वड्डे चेहरे ने जिन्हां दी ऐतकी टिकट जो है वो कट्टी गई है। मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तमाम नाम इस लिस्ट शामिल ने जिन्हां दी टिकट जो है कट्टी गई है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। देखिए, जब 26 जनवरी पे जब परेड निकली और 80% महिलाओं ने वहाँ नेतृत्व किया, तो उसके बाद मेरा जहाँ भी जाना हुआ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र था, चाहे वो गांव का था, शहर का था, वो कॉलोनी थी, कोई भी था, जब मैंने पूछा कैसा लगा, तो हर महिला ने एक ही जवाब लगा, ऐसे लगा बस जैसे कि हम ही वहाँ पर चल रहे हैं। तो वो जो विश्वास उन्होंने दिखाया था महिलाओं के ऊपर, हर क्षेत्र में मौका दिया है, और जो उनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हो सकता है जो हमारे लीगल है उसकी वजह से आगे आ रहा हो, लेकिन अपने निर्णय में उन्होंने आज ही बताया कि उनकी कमिटमेंट हमेशा कमिटमेंट होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इस विचाले किसान जथेबंदियां दे वल्लों अजय मिश्रा टैनी दी टिकट दा विरोध किया गया है। किसान जथेबंदियां ने इसका विरोध किया है। सरवण सिंह पंदेर ने कहा है कि भाजपा दा असली चेहरा सामने आ गया है। केंद्र सरकार दी नीयत खोटी है। देश के लोग भाजपा नूं जवाब देंगे। लखीमपुर खीरी दा इंसाफ मिलन तक जारी रहेगा अंदोलन। बीजेपी ने दस कि लखीमपुर खीरी तो मुड़ तो अजय मिश्रा टैनी नूं टिकट दी है, जिसका कि विरोध हुण किसान जथेबंदियां दे वल्लों किया जा रहा है। सरवण सिंह पंदेर ने कहा है कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। केंद्र सरकार दी खोटी है नीयत। देश के लोग भाजपा नूं जवाब देंगे। दस के कल बीजेपी के वल्लों 195 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की गई है। इस विचाले लखीमपुर खीरी तो मुड़ तो अजय मिश्रा टैनी नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है। हुणे सानू समाचार प्राप्त होया वा कि लखीमपुर खीरी दे मुख दोषी अजय मिश्रा टैनी जिहड़े केंद्र के गृह राज मंत्री आ, उन्हां नूं लखीमपुर खीरी तो जिहड़ी भाजपा वा उन्हें टिकट दित्ती आ और साडियां मंगां विच लखीमपुर खीरी दा इंसाफ लैण दी गल सीगी। तो केंद्र सरकार दा जिहड़ी मैं गल कहंदा सी नीयत ते नीत खोटी आ, वो नंगी हो गई। एक बन्ने बयान आ रहे आ कि असीं किसानां मजदूरां नाल बह के मसले निबेड़ना चाहुंदे, एक बन्ने जिहड़े साडे किसानां मजदूरां दे कातल आ उन्हां नूं टिकटां दित्तियां जा रहीआं। इस फैसले दी असीं निंदा करदे हां और इहदा जिहड़ा वा बदला ये देश के 140 करोड़ लोग लैणगे भी जो भाजपा जिस नीति ते चल रही आ अजिही सरकार चाहिदी आ कि नहीं चाहिदी। असीं जिन्ना चिर लखीमपुर खीरी दा इंसाफ नहीं लेंदे उन्नी देर तक यह अंदोलन जारी रखांगे। अजय टैनी मिश्रे दे बेटे ने लखीमपुर खीरी च किसानां नूं अपनी गड्डी थल्ले दे के कतल कीता ही, शहीद कीता ही, दरड़िया सी। उस अजय टैनी मिश्रा नूं मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट चों हटाउणा ते की सी, अज उहनूं एक बार फेर इनाम दिता आ लखीमपुर खीरी तो भाजपा ने टिकट दे के। हुण मेरा सवाल पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ जी नूं है
कि तुसी ते बड़े किसान हमदर्दी अपने आप नूं जताउने हो, किसानां दा पुੱਤ भी कहने हो। जाखड़ साहब हुण इस गल ते तुसी जवाब दो कि इस तरीके नाल किसानां दा कतलेआम करन वाले नूं भी अगर टिकटां दे के नवाजा जाऊगा, फिर भी तुसी भाजपा नाल खड़े नजर आओगे कि भाजपा तो बाहर रिजाइन दे के बाहर आओगे? आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्दी जारी होएगी। दस कि पंजाब च आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की जल्दी आवेगी लिस्ट, आ कहना है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का। इस विचाले 2 तो 4 दिनों लिस्ट आ जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि 13 दियां 13 सीटां ते ही चर्चा हो रही है, छेती लिस्ट असी जारी करांगे। कल सीएम भगवंत मान ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जलंधर पहुंचे थे। रैली में संबोधन किया गया। 165 मुहल्ला क्लिनिकां का उद्घाटन किया गया। इस विचाले आ बयान दिता गया कि जल्द ही 2 तो 4 दिनों आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे आपने 117 में से 92 देके आशीर्वाद दिया था, इतना ही तगड़ा आशीर्वाद हमें इस लोकसभा चुनाव के अंदर चाहिए। पंजाब की सीटें कब तक आएंगी? हमारी बातचीत कल भी रात को ये चल रही है, अगले 2-4 दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाए। हुण बस एक कोई रिक्वेस्ट करना आया सी कि जे 13-0 हो गया इस बार, ते इस बार 10 साढ़े पहले ही ने जिहड़ा राज सभा च, ते दिल्ली तो आ जाणगे, हरियाणे तो, गुजरात तो, तां जे साडे उत्थे 20-25 उत्थे साडे बंदे होए ते 10 राज सभा वाले विच मिक्स करके, तां कोई भी इहो जिहा पैसा, एक पैसा किसी स्कीम का नहीं होगा जिहड़ा सेंटर सरकार बायस्ड होकर रोक सके। क्योंकि बहुत वड्डी स्ट्रेंथ हुंदी है पार्लीमेंट च कि जो इन्ने बंदे बोलन इकट्ठे लगातार, तां सरकार ते दबाव पैंदा है। इस गल की गारंटी असीं लैंदे हां। एक पैसा चाहे NHM दा 800 करोड़ रुपया रोकिया होया है, RDF का 5500 करोड़ रुपया रोकिया होया है, साडा टोटल 8000 करोड़ के नेड़े तेड़े पैसा रोकिया होया है। पर फिर भी असी कदे खजाना खाली नहीं कहते। आने वाले दिनों बजट आऊगा, तुसीं देखोगे कि शानदार बजट। हुण गल पुराने भाईवाला दी। पंजाब बीजेपी प्रधान के बयान नाल गठजोड़ दीआं चर्चावां ने जोर फड़िया तां अगों मुख मंत्री ने भी सवाल कर दिता कि किहड़े मूंह नाल गठजोड़ कर रहे ने। तां सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अकाली दल नूं बंदी सिखां सने किसानां दा मुद्दा याद करवा दिता। आज जिदन का तोड़ विछोड़ होया कहूँगा अपने बीजेपी का ते अकाली दल का, उस दिन तो है भी लोगों की एक भावना है भी इकट्ठे होकर लड़न, तां जिहड़ी पंजाब दे नाल ठगी हो रही है इहदे ते ठल लाई जा सकती है। लोगों की भावना है। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ के इस बयान ने एक बार फिर अकाली बीजेपी गठजोड़ दीआं चर्चावां तेज कर दित्तियां ने ते नाल ही जाखड़ इस बयान दे नाल विरोधियों के निशाने ते भी आ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिखा निशाना साधदे कहा कि एक पासे किसान अंदोलन के राह ते ने, तां फिर किस मुंह दे नाल गठजोड़ कर रहे ने? नहीं, किस मुंह से होने जा रहा है? वही किसानों की समस्याएं वही खड़ी हैं, तो किस मुंह से जाएंगे गांव में अकाली दल वाले बीजेपी के साथ समझौता करके वोट मांगने के लिए? आपको लगता है कि ये गठबंधन होने जा रहा है? गठबंधन कभी टूटे नहीं था, थोड़ी देर के लिए लग हुए थे, लेकिन 0 × 0 = 0। सुनील जाखड़ के पुराने साथी ते सीनियर कांग्रेसी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी निशाना साधिया। रंधावा ने कहा कि अकाली दल ते बीजेपी समझौता करने के लिए तड़फ रहे ने। सुखजिंदर रंधावा ने ट्वीट करते लिखा कि जाखड़ जी पंजाब जानता है कि बीजेपी ते अकाली दल गुप्त रूप तो समझौता करने के लिए तड़फ रहे ने। इस समझौते नूं तुसीं जनता की इच्छा दस के भाजपा के खिलाफ लोक लहर नूं कमजोर करना चाहते हो। सुखबीर बादल खुल के बोलन कि उन्होंने बंदी सिखां दे, किसानां दे, युवापा तहत गिरफ्तार पंजाबी नौजवानों के मुद्दे ते कोई इतराज नहीं है अते सत्ता दे लई वो हर समझौता करने के लिए तैयार ने। बाकी सुनील जाखड़ जी तुसीं तां हुण खाकी निकर तां पहन ही लई है। तां उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान अकाली भाजपा गठजोड़ ते मोहर लगा रहे ने। राजा वड़िंगे ने तां समझौते का फार्मूला भी दस दिता। वो तो गठजोड़ हो चुका है, इसे करके तो सुखबीर सिंह बादल बोल नहीं रहा। सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल का नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक बयान पंजाब सरकार नूं कोस रहे। अंदरों गठजोड़ हो चुका है, ऑलरेडी 6-7 का समझौता हो चुका है, पर पंजाब चों अकाली दल की होंद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। असीं तां चाहुंदे हां कि समझौता जल्दी हो जाए और सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी बिल्कुल पहला भी वैसे तो कुछ है नहीं गा, पटड़ी जमा लाइन तो ले जाए।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।